भाई कैसे हो। अब हम देखेंगे अपना NCERT वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। देखो, हम देख चुके हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, MCQs देख चुके हैं, तो बस हमें एक बार रीडिंग मारनी है इसकी और कुछ नहीं करना। तो शुरू करते हैं। द पीरियडिक टेबल इज़ ठीक है। द पीरियडिक टेबल इज़ equally the most important concept in chemistry, both in principle and in practice, is the everyday support for students. It suggests new avenues for research to professionals, and it provides succinct organization of the whole of chemistry. It is remarkable demonstration of the fact that chemical elements are not random cluster of entities but instead display trends and lie together in families, and awareness of the periodic table is essential to anyone who wishes to disentangle the world and see how it is built up from the fundamental building blocks of chemistry, the chemical elements. तो ये किसने कहा था? आपने ग्लेन टी सीवॉर्ग। एक एलिमेंट भी है इनके नाम का, सीवॉर्ग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियडिक टेबल, इट स्टैंड्स टुडे एंड मॉडर्न पीरियडिक लॉ. We will also learn how the periodic classification follows as logical consequence of the electronic configuration of atoms. Finally, we shall examine some of periodic trends in physical and chemical properties of the elements. So start करते हैं। Why, अपना पहला सब टॉपिक, why do we need to classify organism नहीं, elements. We know why now that the elements are basic unit of all types of matter. In 1800, only 31 elements were known. By 1865, the number identified element had more than double, 63. At present, 114 elements are known of them. The recently discovered elements are man-made effort to synthesize new elements are continuing. With such a large number of elements, it is very difficult to study individually the chemistry of all these elements and their innumerable compounds individually. To ease out of this problem, scientists search a systematic way to organize their knowledge, classify the elements. Not only it would rationalize known chemical facts about elements, but even predict new ones for undertaking further study. तो ये बताया गया है पहले जो 1800 में हमारे पास एलिमेंट टोटल 31 नोन एलिमेंट थे, आज जाके वो हो गए हैं 63, मतलब 1865 में, और आज जाके 114 हो गए हैं। लेकिन आज की डेट में, ये तो जब तब की बात है जब NCERT लिखी गई थी, आज की डेट में 118 नोन एलिमेंट्स हैं। ठीक है। जेनेसिस और पीरियडिक क्लासिफिकेशन। अब कैसे कैसे क्लासीफाई हुई, क्या क्या प्रोसीजर थे, मतलब क्या क्या क्लासिफिकेशन आई, हिस्ट्री पूरी देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल एंड periodic law and periodic table are the consequence of systematic the knowledge gained by a number of scientists through their observation and experiment. German chemist John Dobriner in 1800, बेसिकली इन्होंने दिया था अपने 1817 में, properties by 1890 he noted similarity among physical and chemical properties of several groups. 3 elements tried in each case. Notice the middle element of each triad. The atomic weight about halfway between the atomic weight of two other elements.
Also, the property of the middle elements were between those of other between those of the other two members. Sir, since Lothlorien relationship refers to the law of triads, seems to work only for a few elements, it was dismissed as coincident. The next reported attempt to classify elements was made by French. अच्छा पहले इनका देख लेते हैं. तो उन्होंने 3 ट्रायड बनाई थी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. अब जो लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज लेंगे हम, वो बराबर आएगा सोडियम के. इन्होंने ये बताया था. कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब. इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, AEB डी चनकॉर्टियोसिस, पता क्या नाम है ये, 1862 में आए थे. तो उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट और एक सिलेंड्रिकल टेबल बनाई एलिमेंट की, जिसमें उन्होंने जो पीरियड प्रॉपर्टी है वो डिस्प्ले की थी. लेकिन इन्हें इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल पाई. तो इंग्लिश केमिस्ट जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, तो जो अपने इंडोग्रेनियन ट्रायड थे, इनसे पहले भी एक आए थे. कौन थे वो? इनसे पहले भी एक आए थे, इनका नाम था लवोजियर. इन्होंने क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे ना, उन्हें मेटल्स और नॉन मेटल्स इसमें बांट दिया था. ठीक है. इन्होंने बताया जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें मेटल क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं. ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें नॉन मेटल कह दिया था. लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते तो इनसफिशिएंट हो जाता है इसकी स्टडी करना. ये पहला ड्रॉबैक था. दूसरा था कि जो मेटलॉइड थे, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते थे, उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था. नए अपनी पीरियडिक टेबल में पार्ट लिया था. ठीक है. तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो डिस्कार्ड कर दी गई थी बाद में. अब हम देखते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल. इनको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से भी जाना जाता है. तो इन्होंने अरेंजमेंट किया है इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का, और फिर इन्होंने क्या बताया वो देखते हैं. ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. द रिलेशनशिप was just like every 8th note of that resembles the first octaves of music. Newland law of octaves seem to be truly for elements up to calcium, although his idea was not widely accepted that time. He, for his work, was later awarded Davy Medal in 1887 by the Royal Society, London. पीरियड लॉ. अब देखो, अब आएगा मेंडलियन पीरियड लॉ. ठीक है. अब इससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो हमारे लिए काम आएंगी. ओके इधर करते हैं. देखो, इनके डिसएडवांटेज क्या था लॉ ऑफ ऑक्टेव से. देखो, एक कैल्शियम तक वैलिड था पहला तो. ठीक है. और जो डी और एफ ब्लॉक थे वो वहाँ पे वैलिड नहीं था, क्योंकि उसमें जो डिस्टेंस आता था एलिमेंट का वो 18 आता था. और कैल्शियम से ऊपर वाले जो थे 1, 2, 3 पीरियड वाले, इनमें 8 आता था. 2, 8, 8, इसीलिए इनवैलिड था. अब एक हम कर्व समझेंगे. 1865 में जो लोथर मेयर ने दिया था कर्व, इन्होंने क्या बताया वो देखो. इन्होंने बताया था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में कर्व दिया था. इन्होंने बोला था टॉप पोजीशन वो ऑक्यूपाई करेंगे जो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मीन्स अल्कली मेटल ऑक्यूपाई करेंगे. वहीं डिसेंडिंग में, मतलब इस जगह गिरती हुई इस तरीके से, इस जगह इधर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे अल्कलाइन मेटल है वो ऑक्यूपाई करेंगे.
इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी फ्लोरीन क्लोरीन ये ऑक्यूपाई करेंगे, इधर मेटलॉइड्स बेस पे मेटलॉइड ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, ये थी लूथर्स मेयर कर्व। तो अब हम देखते हैं पीरियडिक लॉ जो मेंडलीव ने दिया था। ठीक है, तो मेंडलीव 1834 से 1977। तो देखो एक लूथर्स मेयर कर्व आया था 1869 में। ठीक है, दोनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया। उन्होंने एक प्रपोज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो इन्होंने सिंपली क्या बताया था, पहले पढ़ लेते हैं, वो देखते हैं। appear in physical chemical properties at regular interval. Lothar Meyer plotted the physical properties such as atomic volume, melting point, boiling point, atomic weight obtained uh, a periodically repeated pattern. Unlike Newland's Lothar's Meyer curve observed change in length repeating pattern. By 1868, Lothar Meyer had developed a table of, ये तो न्यूलैंड लॉग टेबल है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ रखा गया था, इतना ध्यान रखना, हाइड्रोजन इसमें रखा गया था। ठीक है, एलिमेंट that are closely resemble modern periodic table. However, his work was not published until work of Dmitry Mendeleev, scientist who generally created the development of modern periodic table. अब देखो, डोबरी ने ट्रायड्स पढ़ने से पहले हम लूथर मेयर कर्व का कंक्लूज़न क्या था। इनका कंक्लूज़न ये था, जो एटॉमिक जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके पीरियडिक फंक्शन क्या, मतलब पीरियडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक वेट का। सिंपल बताया था, पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो एक पार्टिकुलर इंटरवल के टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती हो। तो अब देखते हैं, वाइल डोबरी इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ पीरियडिक रिलेशनशिप, इट वॉज मेंडलीव हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द पीरियडिक लॉ फॉर फर्स्ट टाइम। इट स्टेट्स प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये मेन लाइन है भाई, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Mendeleev arranged the element in horizontal row vertical columns of a table in order of their increasing atomic weight such a way the elements with similar properties occupy same vertical column or group. Mendeleev's system of classification elements was more elaborate than the Lothar-Meyer curve. Lothar-Meyer, he fully recognized the significance of periodicity and used broader range of physical and chemical properties classify the elements. In particular, Mendeleev relates similarities in empirical formulas and properties of compound formed by elements. He realized that some of elements do not fit in with his scheme of classification in order of atomic weight was strictly followed. He ignored the order of atomic weight. Thinking that atomic measurement might be incorrect, the place our element with similar properties together. For example, iodine with lower atomic weight than the tellurium are placed. Group 6 was placed in group 7 along with fluorine, chlorine, bromine because similarities in property. At the same time, keeping the primary aim arranging elements similar properties in same group propose a same elements were still undiscovered, therefore left several gaps in the table. For example, both gallium and germanium were known as that time. एक बोरोन, एक सिलिकॉन, एक मैग्नीज, और कौन से थे, एक बोरोन, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन, एक मैग्नीज, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन। एक एल्यूमिनियम क्या रिप्रेजेंट करता था, गैलियम, एक सिलिकॉन मे बी जर्मेनियम, हाँ जर्मेनियम। एक बोरोन क्या रिप्रेजेंट करता था, एक स्कैंडियम, और एक मैग्नीज क्या रिप्रेजेंट करती थी, टेक्नीशियम। Those elements were discovered later. Some of the properties predicted mentally for these elements, those are
found experimentally are listed in table 3.3. The boundless Mendeleev quantitative prediction and their eventual success made him the periodic table Mendeleev famous periodic table published in 1905. तो ये चीज़ें बताई थी इन्होंने, चारों की चीज़ें प्रेडिक्ट कर दी थी। तो बहुत बढ़िया रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरी थी इनकी। ये कुछ पीरियडिक टेबल थे इनकी। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, उस टाइम पे 63 नोन एलिमेंट थे तो उन्हीं की बताई थी उन्होंने। हाइड्रोजन ग्रुप पर सब कुछ बताया था यार इन्होंने। अब हम देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो वोरबेरी, नील वोर, वरी, बर्नर और रैंग ने दी थी। ठीक है, मेरे ख्याल से किसने दी? रैंग, वोर, वरी एंड वर्नर। हाँ, रैंग वोर ने तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी थी और वरी एंड वर्नर ने मॉडल प्रपोज किया था। ओके, तो देखते हैं। अब शुरू होती है अपनी मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। Modern periodic law and the present form of the periodic table. We must have in mind that the Mendeleev developed his periodic table. Chemists knew nothing about the internal structure of atom. However, the beginning of 20th century witnessed the profound development in theories about subatomic particles. In 1913, English physicist Henry Moseley observed a regulating characteristic of X-ray spectrum of element, a plot root frequency root mu of X-ray emitted against atomic number Z give a straight line, not the plot root mu versus atomic mass. He therefore shows the atomic number is more fundamental properties of an element than its atomic mass. Mendeleev periodic law was therefore according to modify this known as modern periodic law, in which the physical chemical properties of element are the periodic function of their atomic weight is changed to atomic number. तो रिलेशन क्या था? जो म्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के स्क्वायर का। ये चीज़ थी बस। Then the periodic law revealed important analogues among 94 natural occurring elements: neptunium, plutonium like actinium, protactinium also found, pitchblende and ore. Uranium stimulate renewed interest in inorganic chemistry has carried into present for creation of artificially produced short-lived elements. You may recall that atomic number is equal to the nuclear charge or the number of electrons in a neutral atom. It is then easy to visualize the significance of quantum numbers and electronic configuration in periodicity of element. In fact, it is now recognized that the periodic law is essential and consequence for periodic variation in electronic configuration, which indeed determined the physical and chemical properties of elements and their compounds. Numerous forms of periodic table have been devised from time to time. Some forms emphasize chemical reaction and valence, whereas others stress and electronic configuration element. Modern version, the so-called long form of the periodic table of element in most convenient widely used horizontal rows, mentally called series, are period, and vertical columns groups elements having similar outer electronic configuration. Their atoms are arranged in vertical columns, refers to the group or families according to the
Recommendation of International Union of Pure Applied Chemistry IUPAC, the group number from 1 to 18, placing older notation of group 1st A, 7th A, 7th, 8th, 1st V to 7th V and 0 group. There are altogether 7 periods. The period number corresponds to the highest principal quantum number n of the element in the period. First period contains 2 elements. Subsequent period consists 8, 8, 18, 18 and 32, 32 elements respectively. The 7th period is incomplete, like 6th period would have theoretical maximum basis of quantum numbers of 32 elements. In this form, a periodic table 14 elements of both 6th and 7th period lengthenoid placed in separate panels at the bottom. Nomenclature of element with atomic number more than 100. The naming of new elements had been traditionally a privilege to discover. The suggested name was rectified by IUPAC in recent years. It has led to some controversy. The new element with high atomic number are so unstable that only minute quantity, sometimes a few atoms, them are obtained. Their synthesis and characterization therefore require highly. So this is a periodic table. This is called S block, D and F, D block, F block, and this is B block. These are lengthenoid, actinoid. इसमें बताएंगे हम कुछ फैक्ट की बात, ठीक है। तब तक के लिए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपना। Sophisticated, costly equipment and laboratory such work carried out competitive spread. Only some laboratories in the world scientists before collecting the reliable data. The new elements all time get tempted to claim the discovery. For example, both American and Soviet in 19 claim credit discovering elements 104. The Americans it Rutherfordium, whereas the Sovietium it Kuchtubuium. हम तो अमेरिकन वाले जानते हैं भाई. To avoid such problems, IUPAC gave a name recommendation until the new element discovery is proved. It is name officially recognized by unnil quadium. Okay. The numeral root 0 number 1 to 9 table 3.4 इसमें हम देख सकते हैं. कहाँ गया रे? Which make the atomic number em. तो ऐसे हम देख सकते हैं अनिल अनबी इस तरीके से अनिल पेयम, फिर अनिल नियम, अनिल पेयम, अनिल ट्रियम और ऊपर आएगा आनन अनल अननियम मामा मिया. सॉरी बार बार मैं यहीं पहुंच जाता हूँ यार. ओके अनिलियम. The new element first gets a temporary name with a symbol considering 3 letters, later a permanent name and the symbol given put of IUPAC representative noticeable 118 element for described element have announced. वही सिंपल है भाई. Electron configuration of elements. अब elements की electronic configuration और उनके periodic table देखेंगे. Learn electron
in an atom characterized by the set of four quantum numbers, the principal quantum number n define the maximum mean energy level of shell. We have to study subshells, also referred to orbitals as PDF. In an atom, distribution of electron in orbital is called electronic configuration. As element location periodic table reflects the quantum number, last orbital filled in segregation will observe direct connection between the इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द एलिमेंट्स एंड लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल. देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पीरियड में कैसे होता है. पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द पीरियड इंडिकेट्स वैल्यू n outermost cell or valence cell. In other words, successive period in periodic table is associated by filling of next higher principal energy. It can be readily seen number of electron in each period twice number of atomic orbital available in energy. This is filled the first period n is equal to 1. Start with filling the lowest level F1s, therefore has two elements hydrogen helium 1s2 1s1. Whereas first K is completed, the second period n is equal to 2. Start from lithium. Third electron entered into 2s cells and adds to the helium. where helium है 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2. सो स्टार्टिंग वही सेम चीज़ बताई गई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की हम पढ़ चुके हैं. द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द नेक्स्ट एलिमेंट बोरोन जो 2p ऑर्बिटल में जाता तो 1s2 2s2 2p2 2p1. ओके तो देखते हैं फोर्थ पीरियड से ट्रांजिशन सीरीज चालू हो जाती है. वही चीज़ बताइए यार. फिफ्थ पीरियड में 4D ट्रांजिशन सीरीज, सिक्स पीरियड में 5D. वही यार सेम चीज़ है यार. इनर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आता है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के बीच में. वही है सब चीज़. हाँ ठीक है. तो वही सेम चीज़ है. इनर ट्रांजिशन सीरीज को हम एक्टिनॉइड सीरीज कह सकते हैं. और एलिमेंट्स आर मेंटेन स्ट्रक्चर प्रिजर्व प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन कीपिंग द एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज. अब ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो आउटरमोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहते हैं. एलिमेंट्स कॉलम सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल सिमिलर प्रॉपर्टीज. ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स NS1 आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ये रहे से. ठीक है. लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम सीजियम फ्रांशियम. ओए हट जा. अच्छा ऐसे मतलब ये पढ़ सकते हैं भाई. ये भी सिस्टम है इसमें. ये लाइन पढ़ के बताओ भाई. पढ़ो भाई पढ़ो. क्या हो गया. अच्छा हम ही बोल दे रहे हैं भाई. Theoretical foundation of periodic classification. The element in a vertical column. Element vertical column constituted group exhibit similar chemical behavior similarities. These elements same number and same distribution electron atoms. Well, we can classify elements in 4 blocks as PDF. 4 ब्लॉक में हमने क्लासीफाई किया. और क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं. तो भाई पीरियड टेबल में बताएंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं. सब चीज़ें डिटेल में बताएंगे. डिटेल में. अच्छा जी भी. और यार सॉरी ये था मुझे लगी नहीं तब. कोई नहीं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इतना. ओके इतना कुछ नहीं भाई. हाँ तो HPDF ब्लॉक है तो पहले ब्लॉक समझा दे रहे हैं भाई फिर देखेंगे. ये है S ब्लॉक. दूसरा कलर लेते हैं. ये है अपना. ये है अपना S ब्लॉक. ठीक है. इसको हम कहते हैं ये जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें ग्रुप 1 इसको हम कहते हैं एल्कली ग्रुप.
भैया ये तो बहुत बेकार जा रही है राइटिंग। चलो भाई, नहीं इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। हाँ, अब सही है। ग्रुप 1 है, उसे हम कहते हैं, चलो हम बोल देते हैं, ग्रुप 1 है उसे हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, जिनका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं NS1। वहीं ग्रुप 2 उसे कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं या बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं NH2। ये होती है S ब्लॉक। तो याद रखना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इटेरियम, बेरियम, एक सेकेंड, हाँ, बेरियम, रेडियम। अब आता है अपना P ब्लॉक। P ब्लॉक जो S ब्लॉक है उसकी कन्फिगरेशन होती है NH2, NS1 to NH2। वहीं P ब्लॉक इसकी कन्फिगरेशन होती है NH2 NP6। ठीक है, तो इसमें आते हैं अपने बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, नियोबियम, ये सब आते हैं ग्रुप। ये इनर्ट गैस होती हैं। फिर आता है P ब्लॉक बता दिए। फिर आता है D ब्लॉक, जिसमें 3D 4D 5G 6G सीरीज आती हैं। 4DC और 5G सीरीज का जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं, क्योंकि पूर सीलिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन और इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। वहीं जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, और भी सारे एलिमेंट्स आते हैं उसके अंदर, लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज। तो बस इतना ही है भाई। देखते हैं S ब्लॉक के बारे में। NH2 outermost electron configuration belongs to S block. They all are reactive metals with low ionization enthalpy. Ionization enthalpy low होती है। देखेंगे ionization enthalpy क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, पर देखेंगे आगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम्स है। The loose outermost electron form 1+ ion in case of alkali or 2+ ion in case of alkaline earth metals. सो रिएक्टिविटी, मेटलिक कैरेक्टर की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है अगर वो जा रहा है डाउन द ग्रुप, और अगर वो पीरियड में जा रहा है तो मेटलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते हैं। वो पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, इसीलिए। P ब्लॉक की बात की जाए तो P ब्लॉक ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें नोबल गैस भी आती हैं, NH2 NP1, NH2 NP1 से NH2 NP6, और एंड में नोबल गैस है जिनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फुलफिल होता है। सो नोबल गैस एक्सहिबिट लो केमिकल रिएक्टिविटी। वहीं हेलोजन ग्रुप है, चाल्कोजन जो ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप है, उसे चाल्कोजन कहते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वही सेम चीज़ है भाई। नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। अभी चिलाइन को खींच गई। अब डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट, 3D 4D 5G 6D सीरीज होती है। N-1 D 0 से 10 और NP6 NP0 to 1 और NS 0 to 2, ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता है। ऑल मेटल्स होते हैं, कलर आयन फॉर्म करते हैं, ऑक्सीजन स्टेट अलग अलग होती हैं। कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन फुलफिल होता है, इसीलिए वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहलाते। 13 to 14 जो ग्रुप होता है, thus takes similar familiar name transition element. The F block inner transition element. The two rows of element in the bottom periodic table lanthanoid, 58 to atomic number 71, 90 to atomic number 103 actinoid, N-2 F14, N-1 D0 to 1, NS2 last electron added to in F orbitals.
ये भी होते हैं ट्रांसुरेनियम एलिमेंट, जो 92 से ज़्यादा होते हैं उन्हें ट्रांसुरेनियम एलिमेंट कह सकते हैं हम। ये कहते हैं भी। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भैया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ ब्रो, एक मिनट रुको। हाँ 92 से ज़्यादा होता है उन्हें ट्रांसुरेनियम एलिमेंट कहते हैं। या ब्रो, या यू आर राइट। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। एस वाले मेटल्स होते हैं, पी वाले नॉन मेटल्स होते हैं, उसी में मेटलॉइड आते हैं। एफ ब्लॉक वाले भी मेटल्स होते हैं। So, metals and non-metals comprise more than 78% of element are known appear to be left side of periodic table. लेफ्ट साइड है पीरियड टेबल उनमें मेटल कहते हैं, जो राइट साइड है उन्हें हम नॉन मेटल कहते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं भाई। गैलियम और सीजियम बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर malleable, ductile. In contrast to non-metals located top right side of periodic table, horizontal row properties, element change from metallic left to non-metallic right. Solid non-metals are usually solid at room temperature, low melting point and boiling point. Boron, carbon are exception. They are poor metals, metallic solid. वही सेम चीज़ जो हम पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, वहीं डिक्रीज होंगे अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है, इसका उल्टा मेटलिक। सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक होल्ड करके रखते हैं उन्हें कहते हैं। ट्रेंड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियडिक टेबल। Okay. Periodic trends and properties. There are many observable patterns in physical and chemical properties of elements. We descend in group move across the period table. For example, within the group chemical reactivity tend to high group metals, low elements toward the middle top, increasing maximum group 17 non-metals like within group represent metals says alkali metals increase just move towards within the group says non-metals halogens reactivity decreases down the group. केमिकल रिएक्टिविटी की बात हो रही है भाई। ग्रुप 1 में हाई होती है, वहीं जो एलिमेंट्स मिडिल में है उनमें लो होती है, और जो आगे चलते हैं उनमें बढ़ जाती है। Reactivity increases move down the group, whereas group of non-metals reactivity decreases down the group. But why? The properties element follow these trend and how we call explain periodicity. Periodicity ऐसी कोई चीज़ जो एक particular interval के बाद repeat हो उसे कहते हैं periodicity. We look theories atomic structure वही चीज़ बताई। Trends in physical properties. These are numerous physical properties of elements such as melting point and melting point, heat of fusion, vaporization, energy atomization, which show periodic variation. However, we shall discuss periodic trends with respect to atomic and ionic radii, ionization enthalpy, electron gain affinity और hint electronegativity. पहला देखते हैं atomic radius. Atomic radius. You can very well imagine that finding the size of an atom a lot more complicated. Measuring the radius of ball, do we know why first size of atom is minus 1.2 angstrom to 1.2 into 10 to the power minus 10 in
radius is very small. Secondly, electron cloud surrounding atoms does not have sharp boundary. Determination of atomic size cannot be precise. In other words, there is no practical way to find the size atom can be measured. However, estimate the atomic size can be made by knowing the distance between the atoms combined. One particle approach estimates size of non-metallic element, distance between two atoms they bound to a single bond called covalent molecule from the value. तो रेडियस के बारे में बात करें तो चार्ट रेडियस हम पढ़ेंगे, कोवलेंट रेडियस, मेटल रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस और आयनिक रेडियस. ठीक है. Covalent radius of the element calculated, for example, bond distance of chlorine Cl2 119 picometer, half of the distance 99 taken as atomic radius. For metals we will define the metallic radius. Metallic radius is inversely proportional to ionization enthalpy. तो हाफ कर देंगे, बस हम डायमीटर का हाफ कर देंगे, वो रेडियस आ जाएगा. दोनों के न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस होगा, उसे कहेंगे. तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देखेंगे हम कैसा. These 10 atomic radius size वैन डेर वाल्स रेडियस तो भाई उसके लिए होती है जो नोबल गैसेस वगैरह होती हैं उनके लिए. तो जो कोवलेंट रेडियस होती है वो होती है, जो वैन डेर वाल्स रेडियस होती है वो 2 टाइम्स होती है कोवलेंट रेडियस के. सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर वैन डेर वाल्स का होता है, फिर मेटलिक रेडियस, फिर कोवलेंट रेडियस मे बी. तो ये चीज़ है, पीरियड में घटती है एटॉमिक रेडियस, वहीं ग्रुप में बढ़ती है एटॉमिक रेडियस, और वहीं अब आता जाती है अपने ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, उसकी बात अलग है. तो अच्छा, इधर हम आयनिक रेडियस भी पढ़ेंगे. आयनिक रेडियस देखो, जो कैटाइन है उसकी कम हो जाएगी नॉर्मल एटम से, और जो एनायन है उसकी ज़्यादा हो जाएगी नॉर्मल एटम से. द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम रिजल्ट इन कैटाइन वेयर इलेक्ट्रॉन गेन लीड्स टू एनायन. द आयनिक रेडियस एस्टिमेट मेजरिंग डिस्टेंस कैटाइन्स इन आयनिक क्रिस्टल. द आयनिक रेडियस exhibit the same trend as an atomic radii. The cation is smaller than its parent because it has fewer electrons, while the nuclear charge remains the same size of anion with the larger the parent atom, because addition of more electrons result in increase in electron effective nuclear charge, decrease in effective nuclear charge. Ionic radius fluoride. ओके. आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज इनके पास सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस एनाइन क्रेटर. ठीक है भाई. वही सेम चीज़ है भाई, क्योंकि अगर हम किसी पार्ट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी. वहीं इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिससे वजह से जो आयनिक रेडियस है वो घट जाएगी. ठीक है. अब देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लो. एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से बहुत कम एनर्जी रिक्वायर होती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने को, उसे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं. It represents the required removal of electron from isolated atom and its ground atom. In other words, the first ionization enthalpy for an enthalpy change equation del. देखो ये बहुत फेमस इक्वेशन है. सेकंड कैसी होगी, 2+ हो जाएगी, वहीं थर्ड में 3+ हो जाएगी. ओके. Energy required to remove electron, hence ionization enthalpy are always positive. Second ionization enthalpy will be higher than the first. Okay. The first ionization enthalpy of first atomic periodicity required electron and other minima, low ionization enthalpy. Okay. तो ये बताया एटॉमिक नंबर. पीरियड में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ती है, वहीं घट जाती है. ये कुछ वेरिएशन ट्रेंड्स हैं.
with their high reactivity. In addition, you will notice two trends. First trend is enthalpy gradually increases, v quota across the period decrease ग्रुप में घट जाती है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के. वही ट्रेंड्स हैं भाई, और क्या है भाई. जो अपना S2 होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है P1 से, वहीं जो P3 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा P4 से. इतना याद रखना है बस, कुछ नहीं याद रखना, कुछ नहीं करना याद, कुछ नहीं करना याद. एक और चीज़ याद करनी है भाई, जो एल्युमिनियम का साइज़ होता है वो बड़ा होता है गैलियम से. बस, अब कुछ नहीं याद करना. The actual charge on nucleus, because of shielding and screening effect, valence shell of 2 electron and electronic configuration, where we move from lithium fluorine. Increasing across constantly more tightly, ionized and enthalpy increase in the period as we go down to okay. ये चीज़ मैंने बताई है सब कुछ, ठीक है. हाँ वही चीज़, सेम चीज़ है भाई. अब देखें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या एफिनिटी. तो कितना हम एनर्जी दे रहे हैं कि एलिमेंट्स को उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने में. सीखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. पहली होती है मे बी एंडोथर्मिक, एनर्जी लेती है. फिर दूसरी होती है एक्सोथर्मिक होती है. बाकी सब तो यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कथा. इसके भी कुछ भाई कुछ सीक्रेट्स पॉइंट्स हैं भाई, वो अपने को देखने पड़ेंगे थिन तरह. तो एक तो है P2 ज़्यादा स्टेबल है P3 से. और कौन सा था याद नहीं आ रहा है यार. मे बी S1 ज़्यादा स्टेबल है. अरे यार कौन सा था इसका ट्रेंड्स. एक मिनट रुकना भाई, सोचने दो, देख लेता हूँ उनको. इसका 2 ट्रेंड्स थे यार. कहाँ ट्रेंड. हाँ S1 ही है. S1 ज़्यादा स्टेबल है S2 से. बस यही करना है हमें. वहीं जो सेकंड पीरियड के हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम है थर्ड पीरियड वालों से. बस यही चीज़ लिखी है इसमें पूरा, ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो कितना प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाउंड करने की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं. तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. तो पॉलिंग स्केल वगैरह आएंगी. जो मोलिकन स्केल है वो होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी अपॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2. वहीं पॉलिंग स्केल है वो होता है मोलिकन स्केल अपॉन 2.8, ठीक है. तो ये ट्रेंड्स हैं जो हमें याद करने हैं. ईजी ट्रेंड्स हैं, इतना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है भाई. इसमें आराम से हो जाएंगे याद, ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है और सबसे कम होती है अपने सीजियम की. ये याद करनी है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें तो एल्यूमिनियम और गैलियम में जो एल्यूमिनियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है. तो जो नॉन मेटल एलिमेंट है उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन करने की. तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटेड होती है उनकी नॉन मेटल प्रॉपर्टी पे. इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू मेटेलिक प्रॉपर्टीज. इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियड, वही सेम चीज़ बताई, पीरियड में बढ़ती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल. अच्छा 21 की है बुक. केमिकल प्रॉपर्टीज.
प्रॉपर्टीज ऑफ बैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले बता रहा हूँ। ना 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 ना, कहाँ यार वो रिलेशन लिखा था इस पे। देखो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हमेशा पीछे आएगा, पहले ही बता रहा हूँ, मतलब ध्यान रखना। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहाँ लिखा यार वो रिलेशन लिखा था एक, से डायगोनल रिलेशनशिप वाला बता दिया है। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, वही है डायगोनल। सेम रेशियो ऑफ चार्जेस, चार्ज बाय मास का सेम रेशियो को डायगोनल रिलेशनशिप है। वही सेम सेम भाई बच्चों वाली चीज़ है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई कोई। तो वही सेम चीज़ें भाई, वही सेम चीज़ें। केमिकल रिएक्टिविटी, टिन 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 टिन। एसिडिक नेचर के बारे में बात होगी। एसिडिक नेचर बढ़ता है देखो पीरियड वाइज, नीचे डिक्रीज होता है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है इसमें बताने लायक। देखो नॉन मेटल कैरेक्टर डिक्रीज ग्रुप की बात हो रही है, वही सेम चीज़ है यार। क्या है यार, कितनी बार बताऊँ, कितनी बार बताऊँ। ये इजी इजी एक्सरसाइज है जो तुम कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। तो ठीक है, टाटा। अब लाएंगे इसके हम MCQs, कम से कम होंगे भाई MCQ 200 कुछ, ठीक है।